Hello, Simran, am I audible? Yes, sir. ये जो शेयर किया दिख रहा है बेटा? Yes, sir, दिख रहा है. ठीक. देखिए हम लोगों ने लॉन्ग वायर एंटीना डिस्कस किया था मॉर्निंग में. ठीक है. ये Yes, हमने sir. रेडिएशन पैटर्न आपको बता दिया था. ठीक है. सर वो मुझे एक चीज बोलनी थी आपसे. सर बताइएगा. क्या कहते हैं जो क्विज हम लोग ने दिए सर उसका सोल्यूशन अगर आप सेंड कर देते तो अच्छा रहता. शेयर कर देंगे आज हम. ठीक है. ओके सर, थैंक यू सर. ठीक है. ठीक है, आज शेयर कर देंगे. तो ये देखिए इसमें हमने जो डिस्कशन किया था बेसिकली लॉन्ग वायर एंटीना उन्होंने डिस्कस किया था, जिसमें हमने बताया था आपको होता क्या है. पहले तो इसकी डेफिनेशन हमने बताई थी, फिर इसका स्ट्रक्चर हमने बताया था आपको. ठीक है. ये देखिए इसका स्ट्रक्चर है. ठीक है. इसके बाद इसमें हमने आपको बताया था दिस इज एग्जैक्टली अ टाइप ऑफ डाइपोल एंटीना. ठीक है. जिसमें हमारा इसको हम हार्मोनिक एंटीना भी बोल सकते हैं. ठीक है. इज ऑल्सो नोन एज हार्मोनिक एंटीना just because of the length is equal to the n times the length of dipole antenna. Half wave dipole antenna means n time lambda by 2. Clear. And n is your harmonics value like 1 2 3 4 5. Clear. So if you see the structure of this, clear, so you can see this is the feed point and this is the length of wire. Clear. So that is your exactly the L is equal to n lambda by 2. This is your long wire. Clear. Just because of why I am saying it is long wire, because it depends upon the value of n. Clear. Its length depend on the value of n. If n will get high, so the length of wire will get increased. Clear. So it just depend upon this n value. Clear. So length depend upon this n value. And on the supporting side we have just two mast place that on the left side and the right side to make it support on the both side. Clear. And there is an insulator between mast and the antenna at the transmitter side, as well as there is an insulator between mast and load and antenna and the sorry, load and mast. There is an insulator at the receiver side. Clear. So we have just discussed about the input that are we are feeding from the this feed line. Clear. Feed point से जो हम input दे रहे हैं उसके that is a AC signal having both positive and negative magnitudes. Clear. So as I have earlier told you, for positive half cycle you can see the charges that are exactly flowing through the long wire. Clear. This long wire that are flowing, that will be attractive in nature. So and just because of the negative half cycle, the charges will be on of repulsive in nature. So it means the cumulative effect will be increasing, and that will produce the increasing electric field on the wire. Clear. So so on the basis of that we have discussed this. So you know that the length, if the length is greater than lambda by 2 and it increases regularly, so directivity will also get high of the antenna. Clear. So then we have discussed that we generally place this antenna in the horizontal manner just because of ground radiates means your radiation through horizontal is exactly a type of polarized wave. Clear. At an angle between 17 degree to 25 degree 24 degree means we are getting a polarized wave in the horizontal manner. Clear. That's why we generally place in the horizontal manner. Clear. So what are the types of this antenna? अगर types की बात करें तो हमारे दो types के हैं, resonant and non-resonant. ठीक है. Resonant type long wire antenna and non-resonant long wire antenna. ठीक है. And if you see we have feed lines that are just giving the structure of this resonant and non-resonant exactly follows the V-type antenna. क्लियर. ये वी टाइप एंटीना का पार्ट है जो किसी कैटेगरी में आता है लॉन्ग वायर एंटीना के.
you can see we have the V type antenna in both resonant and non-resonant condition. This is the non-resonant structure and this is the resonant structure. So maximum radiation pattern will occur in this side. ठीक है, इस साइड में आपको मिलेगा जहां एपेक्स एंगल मैंने लिख रखा है इसी की डायरेक्शन में मिलेगा. क्लियर. This is the bidirectional pattern. You can see that is just getting from the resonant condition, and this is the unidirectional pattern. This is getting by the non-resonant condition. ठीक है, of the V pattern antenna. Clear. So this I have shown you for length 3 lambda by 2. This is the structure. These are the side lobes and these are the major lobes. Clear. Similarly, you can see for L is equal to 4 lambda by 2. So we have 4 side lobes and 4 major lobes. Clear. This is for unidirectional pattern, you can see here. So we are getting the pattern only on a single side. Clear. So this is a unidirectional pattern. Then we have discussed the harmonics waveform. Clear. So if you see, we have fundamental first harmonic, then second harmonic, then third harmonic. Clear. And we just differentiate these harmonics by this dot line. This you can see number of time it cuts on the axis, that is the count of harmonics. Means you can see it meet the this horizontal axis on this point and this point. So there will be 2 harmonics. Clear. And here you can see this y is exactly meeting the point at this point on the axis, that is first harmonic. And if you see this, so we are meeting it on 3 points, so this is third harmonic. Clear. Now, some design parameter aspects we have discussed, like length, electric field, maximum angle radiation, radiation resistance. We have discussed about for your long wire antenna. Clear. Now, the advantage and disadvantage and application of long wire antenna. What is the advantage of this? So you can see on the screen that this long wire antenna exactly having low cost. Clear. So if you design this antenna, it is exactly low cost antenna. Clear. So the cost effective you can see it is. And second point, it offers ease of construction. Means इसको design करना एक आसान है, मतलब बहुत tough नहीं है. Cost effective भी है and design is also easy. Clear. Then the third point is the gain and directivity are improved with the use of long wire antenna. ठीक. Means आपको पता है जैसे कि L is equal to n lambda by 2 होता है हमारा. ठीक है. So as you increase the n, it means it just increase the directivity. और डायरेक्टिविटी इंक्रीज करेगा तो गेन भी बढ़ेगा. ठीक है. So directivity and gain both are increasing for this. Clear. Fourth one is it offers multi-band operation. You can operate it in different frequency band. Means multi-band में ऑपरेट हो सकता है. ठीक है. डिसएडवांटेज क्या है, ये एंटीना के मोर प्रोन टू लोकल इंटरफेरेंस है. जो सिस्टम के इनबिल्ट इंटरफेरेंसेस होते हैं, नॉइज होते हैं, वो सिस्टम से जो इनबिल्ट क्रिएट होते हैं, या लोकल इंटरफेरेंस में आसपास जो भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होगा, वो सब इस सिग्नल को ही अफेक्ट करेगा. ठीक है. तो इसमें जो सिग्नल स्ट्रेंथ होती है वो मोस्ट प्रोन टू लोकल इंटरफेरेंस में, जो लोकल नॉइज वगैरह इंटरफेरेंस होगा सिग्नल का, वो ज्यादा अफेक्ट करता है इसको. ठीक है. Second है it requires proper matching system so as to have better result. Clear. इसको proper impedance matching require है to get the better results. Clear. ये इसका एक second drawback है. Third है its operation is considered with respect to ground. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हॉरिजॉन्टल इसका जो पैटर्न हम जनरली ऑब्जर्व करते हैं. ठीक है. So as its orientation is considered with respect to ground, so it needs proper connectivity from the ground all the time. Clear. Clear. So this is one of another important part. Clear. Then we have applications of long wire antenna. Pehla application, it can be used in point to point distance communication due to their structural connectivity and simplicity, as in skyway propagation. Clear. ये प्रोपागेशन जो है ये आपकी नेक्स्ट यूनिट है, वेव प्रोपागेशन, उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे.
क्लियर? सो दिस इज योर फंडामेंटल टर्म्स। अब हम कुछ चीजें इसमें आपको और बता दे रहे हैं इस यूनिट में, ठीक है? उसके बाद जो है, क्योंकि आपका जितना भी एंटीना वाला पार्ट था, मतलब जो टाइप्स ऑफ एंटीना थे वो सब हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है? नाउ वी कम टू सम अदर parts also, and some numericals we also do in this, clear? So सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो जिसपे बेस्ड आपके एमसीक्यू भी आते हैं ज़्यादातर, ठीक है? Am I audible properly? Am I audible? यस सर। ठीक है, तो मैं कुछ पैरामीटर्स आपको बता रहा हूँ, उसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है? फॉर योर कन्वीनियंस। तो न्यूमेरिकल वगैरह आते हैं तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे एक टर्म है गेन मेजरमेंट बाय टू एंटीना मेथड, ठीक है? इससे पहले भी हम आपको कुछ चीजें और बता देते हैं, देन वी कम टू दिस, ठीक है? एक मिनट रुक जाइए बेटा। ओके, हाउ वी कैन मेजर द बीम विड्थ ऑफ एंटीना, ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है? कि हम इस पे भी न्यूमेरिकल आ जाता है। बीम विड्थ हम कैसे मेजर करते हैं, इसमें कुछ चीजें तो मैं आपको बताया हूँ, जैसे नल टू नल बीम विड्थ। इस पे आज मैंने एक न्यूमेरिकल भी दिया था, मेजरमेंट ऑफ एंटीना बीम विड्थ। ये कर लिया था आप लोगों ने न्यूमेरिकल? ये हमने कल इस पे डिस्कस भी किया था न्यूमेरिकल ट्यूट में। हेलो, ये न्यूमेरिकल कर लिया था? तो दो तरीके से हम लोग मेजरमेंट करते हैं, ठीक है? एक हमारा मेजरमेंट होता है हाफ पावर बीम विड्थ, हाफ पावर बीम विड्थ, और एक होता है नल टू नल बीम विड्थ, नल टू नल बीम विड्थ, ठीक है? तो नल टू नल बीम विड्थ जो हमारी होती है उसको फर्स्ट नल बीम विड्थ भी बोलते हैं, ठीक है? फर्स्ट नल बीम विड्थ, ठीक है? तो जो हाफ पावर बीम विड्थ है इसको HPBW भी बोलते हैं, और इसको नल टू नल बीम विड्थ बोलते हैं, ठीक है? सबसे पहले इसको आप लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल, ठीक है? दिस इज अनदर नेम, बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, क्लियर? सो सबसे पहले हाफ पावर बीम विड्थ क्या होती है, ये आपको मैं लिखा दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। हाफ पावर बीम विड्थ ये क्या होती है, इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए क्योंकि पेपर में पूछा जा सकता है, ठीक है? इन ए प्लेन कंटेनिंग द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम, लिख लीजिएगा इसको, इन ए प्लेन containing the direction of the maximum of the direction of the maximum of the main beam is defined as the angle between, is defined as the angle between two directions angle between two directions in which the radiation intensity, in which the radiation intensity is half of the maximum value of the beam, is half of the
maximum value of बीम। ठीक है, एक तो ये डिफिनीशन है कि एक इन ए प्लेन containing the direction of the maximum of the main beam is defined as the angle between direction in which the radiation intensity is half of the maximum value of the beam। ठीक है, ये हम पहले ही बता चुके हैं आपको, हाफ पावर बीम विड्थ और नल टू नल बीम विड्थ। ठीक है, और दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि इसमें पता होना चाहिए आपको। ठीक है, इसको एक तरीके से और डिफाइन करते हैं, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन टू एंगल्स इन विच द फील्ड स्ट्रेंथ करेस्पॉन्ड टू। इसको एक और डेफिनेशन है, लिख लीजिए आप लोग। दिस इज ऑल्सो डिफाइंड एज means your HPBW is also defined as the difference between two angles at which the field strength correspond to E max upon root 2, E max upon root 2। ठीक है, मतलब ये बताता है डिफरेंस बिटवीन दो एंगल्स के बीच का डिफरेंस बताता है जहां पर फील्ड के स्ट्रेंथ की वैल्यू ई मैक्सिमम अपॉन रूट 2 हो जाती है। ठीक है, इसको कैसे मेजर करते हैं हम लोग, फिर न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। तो जैसे इसका फार्मूला लिख लीजिए आप लोग पहले। दैट इज हाफ पावर बीम विड्थ, हाफ पावर बीम विड्थ दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ थीटा एम माइनस थीटा एच पी। ठीक है, अभी बताएंगे हम क्या है। इफ थीटा एम इज ग्रेटर देन थीटा एल एच पी। ठीक, सिमिलरली it is equal to twice of theta hp minus theta m if theta hp is greater than theta m। ठीक है, तो these are the two conditions जहाँ पे थीटा क्या है, what is this theta? This is the angular position corresponding to E max, maximum value of electric field। ठीक है, जैसे आप देखिए डायग्राम के फॉर्म में बनाए अगर, जैसे we have 2 points। ठीक है, ये हो गया -90 डिग्री, ये हो गया +90 डिग्री। ठीक है, इस तरह से कुछ स्लोप आता है। ठीक है, ये आपका हो गया मॉड ऑफ ई थीटा।
इन dB इन डेसिबल। ठीक है, ये आपका जो है ये आपका क्या है, दैट इज योर 3 dB। दिस इज योर 3 dB। ठीक है, ये क्या है, दिस इज योर मेन बीम, मेन बीम ऑफ रेडिएशन पैटर्न। दिस इज योर मेन बीम ऑफ रेडिएशन पैटर्न। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट नल, फर्स्ट नल। ठीक है, ये जो है दिस इज कॉल्ड HPBW, हाफ पावर बीम विड्थ। ठीक है, और इस पॉइंट से लेके लास्ट तक, दैट इज कॉल्ड बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल। क्लियर, दिस इज योर बीम विड्थ फॉर फर्स्ट नल, यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका हाफ पावर बीम विड्थ। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, ये आपका थीटा है, जो ये एक्सिस है, दिस इज योर थीटा। ठीक है, तो थीटा आपका -90 से +90 की तरफ जा रहा है, दैट इज द एंगल बिटवीन या एंगल ऑफ लाइन ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम ब्रॉड साइड। ठीक है, अब अगर आप हाफ पावर बीम विड्थ निकालते हैं, क्या आएगा, HPBW इज इक्वल टू होगा ट्वाइस ऑफ थीटा m माइनस थीटा HP if theta m is greater than theta LHP। ठीक है, सिमिलरली इसको आप और सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ थीटा HP माइनस थीटा m। तो उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, if theta HP is equal to sorry, theta HP is greater than, not is equal to theta m। ठीक है, theta HP greater than theta m, so this is another condition। So this is your half power beam width। Clear? Similarly you can find null to null beam width। null to null के लिए हमने आपको बताया था ब्रॉड साइड और इनफायर दोनों के लिए रिलेशन। ठीक है, बट इन टर्म्स ऑफ थीटा you may also represent this, that will be equal to, in terms of theta अगर आपको रिप्रेजेंट करता है तो this is twice of theta m minus theta n if theta m is greater than theta n। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, that is equal to twice of theta n minus theta m if theta n is greater than theta m। ठीक है, तो ये आपका जो है कंडीशंस हैं जो आपको याद रखनी है माइंड में। ठीक है, क्लियर है बेटा? ऐसे ही एक टर्म होता है साइड लोब रेशियो। ये तो आपको हमने बताया, ये ब्रॉड साइड एरे के लिए और एंड फायर एरे के लिए भी, इस पे न्यूमेरिकल भी मैंने कराया था। ये एग्जैक्टली इस डायग्राम के थ्रू है। ठीक है, डायग्राम से अगर आप इसको समझना चाहें। ठीक है, तो थीटा एम माइनस थीटा यानी थीटा एन माइनस थीटा एम कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक, एक टर्म है साइड लोब रेशियो। साइड लोब रेशियो क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। साइड लोब रेशियो, ठीक है, क्या होता है ये? तो साइड लोब रेशियो इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द, ये डेफिनेशन लिख लीजिए, साइड लोब रेशियो
is defined as the ratio of the first side lobe, ratio of the first side lobe level to the maximum value of the main beam. The maximum value of the main beam. ठीक है, इट मीन्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफिनेशन है। साइड लोब रेशियो क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ फर्स्ट साइड लोब लेवल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेन बीम। जैसे अगर हम आपको डायग्राम के फॉर्म में समझाएं, देखिए कुछ इस तरीके से होगा। मैं आपको जस्ट आई एम ट्राइंग टू शेयर यू द डायग्राम। जैसे ये है, ठीक है, ये हमारा मेन लोब है, तो ये देखिए इसमें ये जो है, दिस इज योर साइड लोब, क्लियर। ये जो ये देख रहे हैं आपको, ये फर्स्ट, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट साइड लोब। ये और ये दोनों आपके क्या हैं? फर्स्ट साइड लोब हैं, ठीक है, फर्स्ट साइड लोब। ठीक, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज ई थीटा, ठीक है, इन डीवी, ये जो एक्सिस है, ठीक है। और ये आपका मेन लोब है, दिस इज योर मेन लोब, ठीक। ये आपका -90 डिग्री से +90 डिग्री तक जा रहा है, ठीक है। ये आपका थीटा एक्सिस है, ठीक। ये आपका सेकंड साइड लोब है, सेकंड साइड लोब, ठीक है, दिस इज योर सेकंड साइड लोब। तो जो SSL या SLL निकालेंगे वो यहाँ पे निकालेंगे, ठीक है, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब है, जो SLR की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, दैट विल बी एग्जैक्टली द रेशियो ऑफ व्हाट फर्स्ट साइड लोब लेबल टू द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द मेन बीम। तो मेन बीम की मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे होगी और फर्स्ट साइड लोब का यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो दैट इज योर सेकंड साइड। अब देखिए इसमें हम आपको अगर हम SLR का फॉर्मूला लिखें, SLR साइड लोब रेशियो इज इक्वल टू हो जाएगा फर्स्ट साइड लोब लेवल अपॉन मेन बीम मैक्सिमम, मेन बीम मैक्सिमम, ठीक है। दिस इज योर साइड लोब रेशियो, ठीक है। अगर डीबी में लिखते हैं इसी को,
रिप्रेजेंट इन डीबी, इन डेसिबल। ठीक है, तो डेसिबल में हो जाएगा ये SLR इन डीबी अगर आप लिखते हैं इज इक्वल टू हो जाएगा 20 log 10 SLR। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग SLR फाइंड करते हैं। ठीक है, क्लियर है ये? बताइए। अच्छा, रेडिएशन एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं ये भी हमने आपको बताया है। इसको हम लोग एंटीना एफिशिएंसी भी कहते हैं। एंटीना एफिशिएंसी ये कैसे निकालते हैं बताइए। इसको हम लोग ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इन जनरल इसको रेडिएशन एफिशिएंसी भी कहते हैं। हेलो, आवाज आ रही बेटा सभी को? हेलो, हेलो। यस सर। रेडिएशन एफिशिएंसी में बता रहा हूँ, दैट इज द रेशियो ऑफ इन। ये जो कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं या इस पे बेस्ड डायरेक्ट न्यूमेरिकल आते हैं पेपर में। ठीक है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। जैसे रेडिएशन एफिशिएंसी इसको हम एंटीना एफिशिएंसी भी बोलते हैं। इट इज द रेशियो ऑफ रेडिएटेड पावर टू द इनपुट पावर। ठीक है, रेडिएटेड पावर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? WR। ठीक, इसको आप PR भी लिख सकते हैं। पावर को P से भी रिप्रेजेंट करते हैं और W से भी कर सकते हैं। तो WR अपॉन WI, WI इज द इनपुट पावर, WR इज द रेडिएटेड पावर। ठीक है, और WI को हम लोग क्या लिखेंगे? रेडिएटेड पावर प्लस लॉस पावर। ये पीछे बता चुके हैं आपको, फिर से मैं बता दे रहा हूँ। इसको इन टर्म्स ऑफ गेन लिखेंगे तो GP अपॉन GD हो जाएगा। ठीक है, GP क्या है? व्हाट इज GP? पावर गेन। दिस इज योर पावर गेन। ठीक है, JD क्या है? डायरेक्टिव गेन। ठीक है, और WL क्या है? पावर लॉस या लॉस पावर। ये क्या है? रेडिएटेड पावर। ठीक है, तो ये सब चीजें पता होनी चाहिए आपको। तो ये तो ईटा हो गया। सिमिलरली यू कैन फाइंड एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी। एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी। एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी। एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी क्या होता है? सही है, एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? हेलो, ईटा ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे करते हैं? इसमें और इसमें डिफरेंस है। ये एंटीना एफिशिएंसी है, ये एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी है। एपर्चर आ गया तो यहाँ ईटा ए आ गया। ठीक है, क्लियर? इसको कैसे डिफाइन करते हैं? सो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ maximum effective area, maximum effective area of the antenna to the aperture area, to the aperture area। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर हम मैथमेटिकली लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं? ईटा ए इज इक्वल टू AEM अपॉन A। ठीक है, AEM क्या है? AEM इज द मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर। ठीक है,
इसको हम मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर ऑफ द एंटीना बोलेंगे. दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम इफेक्टिव aperture of the antenna. ये क्या है? A क्या है? A is the physical aperture of the antenna. Physical aperture of the antenna. ठीक है. इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो इस फार्मूले को आप निकाल भी सकते हैं, क्या निकल के आएगा. ठीक है, क्योंकि आपको ए ही पता है. ए ही क्या होता है? A is the effective aperture. तो A, you know that A is given by A is equal to होता है लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू डायरेक्टिव गेन. ये सभी को पता है. ए की वैल्यू ये होती है, हम पीछे बता चुके हैं. ठीक है. अगर मैक्सिमम इफेक्टिव अपर्चर की बात करेंगे एईएम, तो एईएम क्या हो जाएगा? लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू व्हाट, जीडी मैक्स हो जाएगा. क्योंकि आप इसको मैक्सिमम कर रहे हैं तो गेन भी यहाँ मैक्सिमम हो जाएगा राइट साइड में. ठीक है. बट आपको पता है जो डायरेक्टिव मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन होता है वो हमारा क्या है? वो डायरेक्टिविटी के बराबर है. मैक्सिमम डायरेक्टिविटी के बराबर है. मैक्सिमम डायरेक्टिव गेन मींस जेडी मैक्स आपका डी के बराबर होगा. सो आप लिख सकते हैं इसको एईएम इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू जेडी मैक्स को डी लिख सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ से डी की वैल्यू क्या आ जाएगी? डी आ जाएगा आपका 4 पाई अपॉन लैम्डा स्क्वायर इंटू ए आ जाएगा. ठीक है. सो नाउ यू नो दैट एज ईटा ए इज इक्वल टू ईटा ए इज इक्वल टू हमारा क्या है फॉर्मूला? ए एम अपॉन ए है. आप पहले इक्वेशन से देखिए जो ये है. ईटा ए क्या है? ए एम अपॉन ए. ठीक है. सो इसमें वैल्यू रख दीजिए ए एम अपॉन ए की. तो ए एम की वैल्यू आप क्या रखेंगे? ए एम आपका ये है लैम्डा स्क्वायर बाई 4 पाई इंटू डी. तो यहाँ से ये है, इसकी वैल्यू उठाइए यहाँ रख दीजिए. तो यह आ जाएगा लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई इंटू डी अपॉन ए है तो इंटू 1 अपॉन ए कर दीजिए. सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? डी अपॉन ए इंटू लैम्डा स्क्वायर अपॉन 4 पाई. ये आपका क्या आ गया? ईटा ए आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीना एपर्चर एफिशिएंसी. डी बाई ए lambda square by 4 pi. This is another important formula that exactly represent the antenna aperture efficiency. ठीक है. इसकी टिपिकल वैल्यू कहाँ तक होती है? जिसकी ईटा ए जो होता है ये लाई करता है 0.5 से लेके 1 के बीच में. 0.5 से लेके 1 के बीच में ये वैल्यू लाई करती है. ठीक है. क्लियर? ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो आपको हम इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है. यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? बताइए बेटा, यहाँ तक समझ में आ गया? हेलो, यहाँ तक समझ में आ गया सभी को? यस सर. अच्छा, तो एक न्यूमेरिकल दे रहा हूँ, उसको करिए आप लोग. आई एम जस्ट गिविंग यू ए न्यूमेरिकल एंड यू जस्ट सॉल्व दिस. ठीक है. I'm just giving you a numerical. Just wait.
एक क्वेश्चन लिखिए, डिजाइन यागी उड़ा एंटीना। या एक क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, हाँ, डिजाइन ए 3 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना। सभी को आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है बस। डिजाइन ए 3 एलिमेंट यागी उड़ा एंटीना to operate at a frequency